خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کا ایک اور ستارہ گل ہو گیا۔ سینئر اداکار اور صداکار طلعت حسین آہوں سیسکیو میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ طلعت حسین کو ڈیفنس 8 قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ مرحوم اداکار کی نماز جنازہ میں شوبز سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ طلعت حسین کے انتقال کو شوبز انڈسٹری کے لیے بڑا نقصان قرار دیا گیا۔ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں جاوید قائم خانی۔ معروف اداکار طلعت حسین کی نماز جنازہ فیز 8 عائشہ مسجد میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں عزیز و اقارب، شوبز انڈسٹری سے وابستہ شخصیات سمیت سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے بھی شرکت۔ نماز جنازہ کے موقع پر عظیم فنکار کے بچھڑنے پر لوگ اداس نظر آئے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بھی طلعت حسین کے گھر جا کر ان کے بیٹے اشر حسین سے تعزیت کی اور لیجنڈری اداکار کے انتقال کو بہت بڑا نقصان قرار دیا۔ طلعت حسین صاحب مرحوم فلم ڈرامہ کی ایک کامل شخصیت تھے۔ ان کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں اگر میں پورا دن بھی بات کرتا رہوں تو کم ہوگا۔ ان کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا، وہ خلا تو پر نہیں ہو سکتا، لیکن ظاہر ہے ہم ان کی فیملی کے ساتھ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ نماز جنازہ میں اداکار جاوید شیخ، سلیم شیخ، اسلم خان، بہروز سبزواری، آصف رضا میر، شبیر جان، ساجد حسن، منور سعید، شہزاد رضا سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ہم ہی کہتے ہیں کہ پاکستان کا فنکار آج یتیم ہو گیا۔ ایک اتنے بڑے فنکار کو کھو دیا ہم نے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے جانا ہے، اور طلعت حسین صاحب اپنا فن چھوڑ گئے ہیں۔ جبکہ اداکارہ روبینہ اشرف، حنا خواجہ بیات، زیبا شہناز اور دیگر نے مرحوم اداکار کے گھر جا کر تعزیت کی۔ ایکٹر تو تھے ہی بہت بڑے، ہم سب کے لیے اکیڈمی کا درجہ رکھتے تھے، کیونکہ ہم سب نے اور ہمارے آنے والی نسلیں اس کام میں جو لوگ آئیں گے وہ سب سیکھیں گے ان سے۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو انہیں یاد کر کے لوگ روتے ہیں۔ طلعت صاحب ایک ایسی شخصیت تھے اور ایسی شخصیت رہیں گے جن کو لوگ یاد کر کے روئیں گے بھی، لیکن ان سے بہت مستفید بھی ہوں گے۔ طلعت حسین کو ڈیفنس فیز 8 کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ طلعت حسین طویل عرصے سے علالت کے باعث زیر علاج تھے اور اتوار کی صبح خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوسری جانب لیجنڈ اداکار کے انتقال پر سیاسی، سماجی شخصیات سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں نے تعزیت کا اظہار کیا اور مغفرت کی دعا کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے معروف لیجنڈری اداکار ہدایت کار طلعت حسین کی وفات پر قائم مقام صدر، وزیر اعظم اور شوبز شخصیات سمیت دیگر نے افسوس کا اظہار کیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے بھی مرحوم کے درجات بلند کی دعا کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کا ایک اور روشن باب بند ہو گیا۔ مرحوم طلعت حسین کے انتقال پر وزیر اعظم بھی رنجیدہ ہو گئے۔ شہباز شریف نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین سے اظہار تعزیت کی۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ طلعت حسین کی فنون لطیفہ کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی طلعت حسین کے اہل خانہ سے ہمدردی و تعزیت کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے بھی مرحوم کے درجات بلند کی دعا کی۔ اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ طلعت حسین بہترین انسان اور زبردست اداکار تھے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی، صوبائی وزیر ثقافت ذوالفقار علی شاہ، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار سمیت دیگر وزراء نے بھی مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اسی طرح اداکار جاوید شیخ، عدنان صدیقی، بشرا انصاری سمیت دیگر شوبز شخصیات نے بھی طلعت حسین کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ڈائیلاگ کے شہنشاہ، پاکستانی ڈرامہ نگاری کے شیکسپیئر اب ہم میں نہیں رہے۔ 3 سال کی عمر میں بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آنے والے اداکار نے دہائیوں تک مداحوں کے دلوں پر راج کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے معروف اداکار طلعت حسین بھارت کے شہر دہلی میں 1940 میں پیدا ہوئے۔ ان کا گھرانہ قیام پاکستان کے بعد بھارت سے پاکستان منتقل ہوا۔ طلعت حسین نے 1970 میں اداکاری کا آغاز کیا۔ طلعت حسین نے 1972 میں ماہر تعلیم پروفیسر رخشندہ حسین سے شادی کی۔ وہ 3 بچوں کے والد تھے، جن میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہے۔ لندن سے تعلیم حاصل کرنے والے طلعت حسین نے پاکستان ٹیلی ویژن سے اداکاری کا آغاز کیا، جنہوں نے بعد میں برطانوی ٹی وی سمیت بالی ووڈ فلموں میں بھی کام کیا۔ ان کے مشہور ڈراموں میں آنسو، طارق بن زیاد، بندش، دیس پردیس، عید کا جوڑا، فنون لطیفہ، ہوائیں، ایک نئے موڑ پہ، پرچھائیاں،
دی कासल, एक उम्मीद, इंसान और आदमी व दीगर शामिल हैं। सीनियर अदाकार को 2021 में सितारा इम्तियाज और 1982 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। इन्हें 2006 में नॉर्वेजियन फिल्म इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बेहतरीन माविन अदाकार के लिए अमांडा अवार्ड और फिल्म मिस बैंकॉक में बेहतरीन माविन अदाकार के लिए 1986 में निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। तलत हुसैन तवील अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। पाकिस्तानी ड्रामों का दरख्शां सितारा तलत हुसैन आज दुनिया फानी से कूच कर गए। फनकार बरादरी उदास है। तलत हुसैन का इंतकाल बड़ा नुकसान करार दे दिया। ज़ेबा शहनाज ने कहा कि मेरा बड़ा भाई मुझसे जुदा हो गया। रोबिन अशरफ ने कहा कि तलत हुसैन शोबे अदाकारी में अकेडमी का दर्जा रखते थे। दीगर शख्सियात का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जिस पाए के वो फनकार थे और जिस तरह और जिस नौयत का काम उन्होंने किया है, मुझे लगता है अदाकार, सदाकार, हिदायतकार, उस्ताद, इतने सारे मुख्तलिफ़ काम किए हैं उन्होंने, मगर इन सब चीज़ों में सबसे अहम बात ये थी कि उन्होंने क्या काम करने चूज़ किए। कामों की चॉइस, ड्रामों की, कंटेंट की चॉइस बहुत अहम है और वो बनाती है शख्सियत, सिर्फ फ़नकार नहीं, शख्सियत। तलत अंकल सिर्फ फ़नकार नहीं थे, शख्सियत थे। आप उनसे बात करें, किसी मौजू पे भी बात करें, आप उनसे इख्तिलाफ़ करें या आप उनसे इत्तफ़ाक़ करें, लेकिन उनका ओपिनियन, उनका अंदाज़े बयान, उनका तरीक़ा बात करने का, इतना अरसा सिर्फ काम नहीं किया उन्होंने, पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे, पढ़ाई भी जारी रखी हुई थी। अभी आज एक क्लिप चला है, मेरा ख़्याल है वो मरसिया है, जो उन्होंने कभी PTV पे शायद पढ़ा था। मैं सिर्फ सुन रही थी अल्फाज की अदायगी, और वो तो अब मोती बिल्कुल मोती, खूबसूरत, और ऐसी उर्दू कुर्बान हो जाए। और हमारा बचपन तो सिर्फ उनको देख के नहीं, उनको सुन के भी गुजरा ना। रेडियो पे ड्रामा किया करते थे और ज़्यादातर कमर्शियल्स में उनकी आवाज़ हुआ करती थी। तो तलत अंकल से आप मिले या ना मिले, आप उन्हें जाने या ना जाने, आप उनको जानते ही थे। अगर वो कहीं से गुजर जाएं तो शायद शक्ल से आप उनको ना पहचानें, लेकिन हम आवाज़, अगर वो बोलेंगे तो हम मुड़ के उन्हें देखेंगे। मैं शुरू में बहुत डरती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी, मेरी तो आवाज़ बंद हो जाती थी। और तलत अंकल ऐसे थे, बस उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती थी, उनकी खामोशी ही समझा देती थी। एक ख़ास किस्म की खामोशी कि उनकी बाउंड्रीज़, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। लेकिन वो बहुत नरम दिल थे, बहुत नरम दिल। जब मुझे कैंसर हुआ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, हौसला दिया, जल्दी वापस आने को कहा। मैं कैम्ब्रिज में थी, इतने प्यार से उन्होंने मुझसे बात की, वो टाइम निकाला उन्होंने मेरे लिए। बहुत नरम दिल और काइंड आदमी थे और मोहब्बत से भरे हुए थे अपनी कला के लिए, अपने इर्द गिर्द के कॉलीग्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ही वॉज जस्ट मैन फुल ऑफ लव एंड जीनियस ऑफ हिज टाइम। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए दीगर खबरों में आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का कराची को महफूज बनाने का प्लान। सेफ सिटी मंसूबे के लिए 3 अरब रुपए से ज़ायद फंड जारी कर दिए गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार का कहना था कि सेफ सिटी मंसूबे से जराइम में कमी और खात्मे में मदद मिलेगी। मंसूबे का पहला मरहला 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत की। दूसरे मरहले में कराची को मुकम्मल कवर करने की कोशिश की जाएगी। सेफ सिटी मंसूबा कराची के बाद सिंध के दीगर शहरों तक वसी किया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी का दावा भी कर दिया। एक बार फिर से बात करेंगे जाली भर्तियों की। महकमे वर्कर वेलफेयर बोर्ड में जाली भर्तियों का इंकशाफ हुआ। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने तहकीकात शुरू कर दी। वर्कर वेलफेयर बोर्ड से मुलाजमीन का सर्विस रिकॉर्ड तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वर्कर वेलफेयर बोर्ड में 100 जाली भर्तियां की गई। एडमिन ऑफिसर बशीर चाचर और वेलफेयर ऑफिसर माजिद शेख का जाली सर्विस रिकॉर्ड है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का लियारी में जारी मेगा प्रोजेक्ट का दौरा। आर्ट चौक में तामीर होने वाले सिविक सेंटर में काम की रफ्तार का जायजा लिया।
सईद गनी का कहना था कि इमारत के काम की रफ्तार को तेज किया जाए, अतराफ में सड़कों को भी बेहतर किया जाए। इमारत 482 मिलियन रुपए की लागत से तामीर होगी। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर समेत 5 मंजिलें तामीर की जाएंगी। लियारी, सागेवाड़ा रोड, मेहराबीसा रोड और टेजररी रोड की तामीर का भी जायजा लिया। कराची बंदरगाह पर मुसाफिर वैन समंदर में जा गिरी। वाक़े में ड्राइवर को बचा लिया गया। KICT की बंदरगाह पर हुकाम की गफलत के बायस गुज़श्ता रात 11:30 बजे के करीब 2 जहाज़ों के दरमियान हाईएस वैन समंदर में जा गिरी। सराय के मुताबिक मुसाफिर वैन में ड्राइवर मौजूद था, जिसे बचा लिया गया। ड्राइवर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। सराय का कहना है कि बर्थ पर जहाज़ों और समंदर के करीब गाड़ी आने की इजाज़त नहीं होती। वैन शटल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। कराची बंदरगाह पर समंदर में गिरी मुसाफिर वैन को निकाल लिया गया। 2 जहाज़ों के दरमियान वैन गुज़श्ता रात समंदर में गिरी थी। वैन ड्राइवर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कराची बंदरगाह पर समंदर में गिरी मुसाफिर वैन को निकाल लिया गया। 2 जहाज़ों के दरमियान वैन गुज़श्ता रात समंदर में गिरी थी। वैन ड्राइवर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये वाक़या कल रात पेश आया था। और आपको बताएं कि कराची बंदरगाह पर समंदर में गिरी मुसाफिर वैन को निकाल लिया गया है। नाज़रीन, सिंध में खसरा के केसेस बढ़ गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने तफसीलात तलब कर ली। DG हेल्थ से रोकथाम के लिए रिपोर्ट तलब। सरकारी अफसर को इंक्वायरी की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। सिंध में खसरा के केसेस बढ़ रहे हैं और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इस पर तफसीलात तलब की। DG हेल्थ से रोकथाम के लिए रिपोर्ट तलब की गई है। सरकारी अफसर को इंक्वायरी की भी हिदायत जारी कर दी गई। होलसेल में आटा सस्ता लेकिन सरकारी निर्खनामे में महंगा। रिटेलर्स की मनमानियां जारी। कीमत कम ना करने पर डट गए। रिटेलर्स का होलसेल में सस्ते आटे का रिलीफ आवाम को ना देने का ऐलान। होलसेल में फाइन आटा 22 रुपये सस्ता होकर 98 रुपये किलो पर आ गया, मगर रिटेल में आटा 125 रुपये किलो से सस्ता ना हो सका। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। इंतजामिया की गफलत से मुनाफाखोरों की मौजें लग गईं। आटा सस्ता होने के बावजूद कीमत कम ना हो सकी। होलसेल में फाइन आटा 20 रुपये सस्ता होकर 98 रुपये किलो पर आ गया, मगर रिटेल में आटा 125 रुपये किलो से सस्ता ना हो सका। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर एसोसिएशन फरीद कुरैशी का कहना है कि जो सरकारी कीमत मुकर्रर है उसी कीमत पर आटा बेच रहे हैं। मोहल्ले में छोटे दुकानदार भी सरकारी कीमत पर अमल कर रहे हैं। 88 रुपये में अगर आटा आप कह रहे हैं होलसेल में है तो 12 रुपये किलो का तो एक दुकानदार को वो कॉस्ट आ जाती है जब वो पहुंचता है। अब वो क्या कीमत को अपने तौर पर नहीं बढ़ा सकता, जबकि 98 रुपीज़ कमिश्नर कराची ने लिखा है। जब वो 98 से ज़्यादा नहीं बेचा तो हम लोग उस पर गिरफ्त पे नहीं आते हैं। अगर कोई जो भी इसमें ज़्यादा बेचेगा तो लाजमी बात है कि वो इस पर गिरफ्त में आएगा। शहरी रिटेलर्स के रवैये पर फट पड़े। आटा सस्ता होने के बावजूद महंगा मिल रहा है। कमिश्नर कराची मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। सस्ता देना चाहिए दुकानों वालों को भी ना, जो भी बेच रहे हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि गरीब लोग हैं भाई, सब आटा लेने वाले। आटा भी जैसे गवर्नमेंट ने सस्ता किया है तो हर आवाम को, गरीब आवाम को जो है ना दहलीज तक पहुँचना चाहिए। हमारी तो यही हुकूमत से जो है ना अपील है। होलसेल में आटा सरकारी कीमत से भी सस्ता हो गया, मगर सरकारी कीमत में रेट तब्दील न होने से दुकानदारों को मुनाफाखोरी का मौका मिल गया है। कैमरामैन हारिस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश ने शहरियों को बदहाल कर दिया। नॉर्थ कराची में बिजली की आग बचौली ने मकीनों का सुख चैन छीन लिया। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। बिजली की लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद ना हो सका। नॉर्थ कराची सेक्टर 3 में शहरी चकरा गए। मकीनों ने शिकवा किया कि बर वक्त बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग का अजाब झेलना पड़ रहा है। सुबह 8 बजे जाती है, फिर 9:30 बजे आती है, उसके बाद 12:30 बजे चली जाती है, फिर 2 बजे आती है, फिर दोपहर में भी जाती है, फिर रात में जाती है। कोई टाइम नहीं है, 4-5 मरतबा जाती है। सबको नज़र आ रहा है कैसी परेशानी हो रही है। बिल तो आ रहे हैं 20-20 हज़ार के। सबके घरों में तो एसी नहीं है ना ही सबके घरों में कोई जनरेटर है, ना सबके घरों में पैनल सोलर लगे हुए हैं। जब लाइट जाती है तो हमें ही पता है कितनी परेशानी होती है।
ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। तर्जुमान कलेक्टर के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। कुछ इलाकों में कुंडों की बहतात और बिजली के बिलों की अदम अदायगियों के बायस लोड मैनेजमेंट की जाती है। लोड शेडिंग वेबसाइट पर दिए गए शेड्यूल के मुताबिक की जाती है। कैमरामैन हैदर अली के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर लोगों ने रुख किया ठंडे मशरूबात की दुकानों का। किसी ने छाछ और सत्तू पीकर गर्मी से जान छुड़ाई तो कोई गन्ने का शरबत और लस्सी पीता दिखाई दिया। मशरूबात की दुकानों पर रश लगने से दुकानदार भी खुश दिखाई दिए हैं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। झुलसा देने वाली गर्मियों ने शहरियों को बेहाल कर दिया। गर्मी की शिद्दत कम होने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया। शहरियों का कहना है रिवायती मशरूबात का इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद होता है। गर्मी में छाछ, सत्तू, गन्ने का रस और लस्सी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ज्यादा तो यही कि आलू बुखारे का जूस, सत्तू हो गया, गन्ने का जूस, ये चीज़ें ज़्यादा, क्योंकि अभी भी घर का कुछ संभालने नहीं दिखते थे। गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कराची में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है जी। तो इस वजह से ये चीज़ें सबसे बेस्ट हैं। कारोबार चलने पर दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं जितनी गर्मी पड़ती है इतना ही शरबत फरोख्त होता है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। कराची इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल पर समंदर में गिरने वाली शटल कोच को कई घंटों के बाद ऑपरेशन के बाद निकाल लिया गया। वाक़या गुज़श्ता रात पेश आया। हादसे में जख्मी होने वाले ड्राइवर की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। शटल कोच गुज़श्ता रात समंदर में गिरी थी। हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया था जिसे गुज़श्ता रात से अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जिसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। इंतजामिया के मुताबिक शटल गिरने की तहकीकात भी शुरू कर दी गई। KITC हुकाम के मुताबिक ये वाक़या टर्मिनल के ऑपरेशंस पर असरअंदाज नहीं हुआ और इस वाक़े के बावजूद टर्मिनल के ऑपरेशंस मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। इमदादी कार्रवाई में कराची पोर्ट ट्रस्ट और मुख्तलिफ रेस्क्यू टीमों ने हिस्सा लिया। भारी भरकम गैस के बिलों की अदायगी के बावजूद शहरियों को गैस मसाइल का सामना है। लकड़ियों और LPG सिलेंडर के इस्तेमाल ने शहरियों के अखराजात बढ़ा दिए। कराची में गैस की संगीन मसाइल ने शहरियों के मामूलाते ज़िंदगी को दरहम बरहम करके रख दिया। शहरियों का कहना है कि लकड़ियों और LPG सिलेंडर के इस्तेमाल ने अखराजात बढ़ा दिए। दिन में किसी भी वक्त गैस प्रेशर में कमी या बंदिश हो जाती है। महमूदाबाद, कोरंगी, मेहरान टाउन, सोल्जर बाज़ार, औरंगी टाउन, साइट, मेट्रोवेल समेत मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासिर हैं। तर्जुमान SSGC के मुताबिक मुख्तलिफ गैस फीड से हासिल होने वाली गैस के प्रेशर में कमी का सामना रोज़ाना लाइन पे को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और मानसून के चैलेंज से निपटने के लिए बल्दिया उस्मा कराची मुतहरिक है। डी वाटरिंग पंप समेत ज़रूरी मशीनरी की मुरम्मत भी करवा ली गई। सीनियर डायरेक्टर म्युनिसिपल सर्विसेज अनवर बलोच कहते हैं चॉकिंग पॉइंट्स की निशानदही कर ली है। जून के पहले हफ्ते से बड़े नालों की सफाई का आगाज़ किया जाएगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के बाद बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए बल्दिया उस्मा कराची ने तैयारियां शुरू कर दी। सिटी 21 से गुफ्तगू में म्युनिसिपल सर्विसेज के सीनियर डायरेक्टर अनवर बलोच का कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दिया उस्मा कराची को ग्रांट मिलने में ताख़ीर हो गई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वाहब की ख़ुसूसी हिदायत पर ये काम करवाए जा रहे हैं। नामवर आलम दीन और चेयरमैन इमाम खमीनी ट्रस्ट अलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी सरबराही में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर ताज़ियती रेफरेंस हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र की उलमाए कराम और मशाइख ने शिरकत की। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर को खराजी अकीदत पेश करने के लिए ताज़ियती रेफरेंस में कायम मकाम ईरानी कौंसल जनरल और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर कायम मकाम ईरानी कौंसल जनरल अली असगर मगारी का कहना था कि इब्राहिम रईसी ने न सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि दुनिया भर में इत्तेहाद के लिए काम किया। अल्लामा सईद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने इस अज़्म का इजहार किया कि इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का का मिशन आगे लेकर चलेंगे। इस मौके पर दीगर मुकर्रीन ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के अफकार और किरदार पर रोशनी डाली। ताज़ियती रेफरेंस में साबिक वफाकी वजीर मुनीर गेलानी, बाबा शफीक भट्ट, पीर उस्मान नूरी, पीर नौबहार शाह, परवेज अकबर साकी, प्रोफेसर सदाकत आफरीदी, प्रोफेसर शब्बीर अंजुम, अल्लामा नासिर जोइया, अल्लामा हसन रजा कमी, मोहम्मद हनीफ कमर, राशिद रिजवी, महर हमीद, अरसलान फारूक, अल्लामा अजहर, सफदर हुसैन जाफरी, अल्लामा रशीद तोराबी ने शिरकत की। इस मौके पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और रुफ़का के लिए कुरान ख्वानी और फातिहा ख्वानी का भी एहतमाम किया गया।
ट्रांसपोर्टर्स वफ़द की साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल के हुकाम से मुलाकात। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने के लिए ग्रैंड मीटिंग के इनेकाद का फैसला हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने एशियाई पाकिस्तान टर्मिनल के हुकाम को बंदरगाहों के अतराफ सड़कों की टूट फूट और दीगर मसाइल से आगाह किया। जिरा ब्रिज से हावस गेट तक ट्रैफिक के मसाइल, RTG ऑपरेशन की सुस्त रवि समेत दीगर मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। वफ़द में ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड्स, ऑयल टैंकर समेत दीगर एसोसिएशन के नुमाइंदे शरीक थे। डोलीमन मॉल में सजा चमचमाती गाड़ियों का ऑटो शो। हेवल H6 HEV, जोलियन HEV स्पोर्ट्स समेत दीगर गाड़ियों शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। डॉल्फिन मॉल में सजा गाड़ियों का मेला। कई ऑटो कंपनीज की चमचमाती नई गाड़ियों की हुई नुमाइश। कीमती गाड़ियां देखकर शौकीन हुए हैरान। हेड ऑफ मार्केटिंग साजगार इंजीनियरिंग अबू जर ने कहा कि डॉल्फिन में ऑटो शो की वजह से DHA और डिफेंस के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। अब भी अच्छा फीडबैक मिला है। 2021 के बाद से ऑटो इंडस्ट्री शदीद मुतासिर हुई, ताहम अब इसकी बहाली का इम्कान है। डॉल्फिन का जो एक खास बात है वो ये है कि यहाँ पे जो हमारी डायरेक्ट टारगेट ऑडियंस है ना वो बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि DHA क्लिफ्टन वगैरह के एरिया आसपास है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है 1-on-1। 2021 के बाद से मार्केट जो है ना वो काफ़ी डाउनवर्ड ट्रेंड का शिकार जा रही है, काफ़ी नीचे है। डॉलर अब काफ़ी अरसे से स्टेबल है। पल्स मार्केट की ये है कि बजट के बाद शायद थोड़ा सा इंडस्ट्री बाउंस बैक करना शुरू करे। अगले 2 साल 1 साल के अंदर काफ़ी हद तक रिकवर कर ले जो ऑटो इंडस्ट्री है। 2025 को हम लोग एक अच्छा साल फोकस कर रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। शहरियों ने शिकवा किया कि 50 लाख रुपए वाली गाड़ी अब 1 करोड़ से तजावुज कर गई है। नई गाड़ी सिर्फ देख ही सकते हैं, पुरानी गाड़ी खरीदने को ही तरजीह देते हैं। 40 लाख की 50 लाख की गाड़ी है वो 1 करोड़ की हो गई, ठीक है ना। तो अब 1 करोड़ की अगर आप नई ब्रांड लेंगे तो हमारी जो डॉलर रुपी पैरिटी है वो काफ़ी है। डॉलर अब काफ़ी महंगा हो गया है और इसमें उनका कसूर भी नहीं है। बाइंग कैपेसिटी लोगों की कम हो गई है। देखने की हद तक तो बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन क्योंकि परचेजिंग पावर ओवरऑल लोगों की कम हो चुकी है तो ये देखने के लिए तो अच्छा माहौल है, लेकिन ये है कि लोग प्रेफर कर रहे हैं कि यूज़ गाड़ी कोई अच्छे पैसों में मिल जाए तो वो ले रहे हैं अक्सर। ऑटो शो में गाड़ियों से लगाव रखने वाले हज़ारों अफराद ने शिरकत की और कंपनीज की मसनूआत को सराहा। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ काविश मेमन, सिटी 21। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का बेला 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में सजेगा। मेगा इवेंट में शिरकत करने वाली पाकिस्तानी टीम की टी-शर्ट्स बाजारों में फ़रोग के लिए दस्तयाब है। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। 7 समुंदर पार क्रिकेट का मेला 1 जून से शुरू होने जा रहा है, जिसके मुश्तरका मेजबान अमेरिका और वेस्ट इंडीज होंगे। शहरी अकायद के बाजारों में पाकिस्तानी टीम की टी-शर्ट्स फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं, जिसे बेहद पसंद किया जा रहा है। मुख्तलिफ क्वालिटी की टी-शर्ट्स की कीमत 500 से 2000 रुपए तक है। दुकानदार पुरुमीद हैं कि सीजन अच्छा गुजरा है तो इन्हें भरपूर फायदा होगा। फरोख्त माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है काम का, और तकरीबन अच्छी खासी सेल आउट हो रही है। अमेरिका में डेली माल जा रहा है, फिर पाकिस्तान में भी काफ़ी माल सेल आउट हो रहा है। और नई टी-शर्ट है, न्यू डिज़ाइन है, हर कस्टमर की कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान की शर्ट पहन के एंजॉय करें। न्यू टी-शर्ट है। बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए दुकानदार भारतीय टी-शर्ट्स भी फरोख्त कर रहे हैं। शहरी इन्हें खरीद भी रहे हैं। पाकिस्तान को तो मैं ऑफकोर्स बाबर को सपोर्ट करता हूँ। मेरी नज़र में बाबर कोहली बराबर है, लेकिन कोहली आगे, क्योंकि कोहली एक टाइम से खेल रहा है। बाबर अभी आए, बाबर को उस टाइम के लिए जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कोहली जो है मैं समझता हूँ कि क्रिकेट की शान है। हर पाकिस्तानी तो मैच देखने अमेरिका या वेस्ट इंडीज नहीं जा सकेगा, लेकिन ग्रीन शर्ट्स पहनकर सपोर्ट करने की ख्वाहिश जरूर रखता है। इवेंट में पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 6 जून को मेजबान अमेरिका से खेलेगी। इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। कैमरामैन कय्यूम शेख के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। और नाज़रीन, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। पाक वहील की जानिब से सजा गाड़ियों को मेला, जहाँ इस्तेमाल शुदा सर्टिफाइड गाड़ियाँ शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। मेले में मुख्तलिफ सर्विसेज पर रायत भी मिल रही है। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्ताखार की रिपोर्ट में। सेंटर में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों का मेला सज गया। मेले में मुनफरिद मॉडल्स और खुसूसियात की गाड़ियाँ शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। शहरियों ने भी मेले के इनेकाद को खूब सराहा। हमें यहाँ पर आकर एक तो एक हर वेरिएंट की गाड़ियाँ हमें मिल जाती हैं और एक ही जगह पर हम लोगों को मिल जाती हैं। और नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर गाड़ियाँ मुनासिब से मुनासिब प्राइस में हमें मिल जाती हैं और अपने मतलब की हम सारी वैरायटी हमारे पास यहाँ मौजूद होती है।
تو ہمارے لیے سلیکٹ کرنا اور فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اپنی رینج کو سامنے رکھتے ہوئے, اپنے بجٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگ فیصلہ جلد از جلد کر سکتے ہیں. یہ کم تو خیر نہیں کر سکتے, میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی ہے تھوڑی سی, کیونکہ ابھی تو بہت سارے لوگ اصل میں اکٹھے لوگ آ جاتے ہیں, تو شاید بائر کو جو سیلر ہوتا ہے اس کو شاید یہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ بہت سارے کسٹمر آ گئے, کلائنٹ آ گئے, تو ریٹ شاید بڑھا دیتا ہے تھوڑے سے. پاک وہیلز کی چیئرمین سنیل منج نے بتایا کہ میلے کے انعقاد کا مقصد شہریوں کو ایسا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے جہاں ایک چھت کے تلے گاڑیوں کے شوقین افراد پاک وہیلز کے ماہرین کی رہنمائی سے بآسانی اپنی پسندیدہ گاڑی خریدنے کا خواب پورا کر سکیں. نئی گاڑیاں جو ہیں وہ لوگوں کی ریچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں, بہت مہنگی. آپ کو پتہ ہے متوسط طبقہ ہیں جو نوکری پیشہ لوگ ہیں, وائٹ کالر جو اپنی جاب کرتے ہیں, تو وہ لوگوں کے لیے تو عام گاڑی جو ہے ریچ سے باہر ہے. تو یوز گاڑی از دا اونلی آپشن. اس کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گرمی ہے, ڈفرینٹ جگہوں پہ لوگوں سے جا کے کمیونیکیٹ کرنا, اس سے بہتر ہے کہ آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے سینکڑوں گاڑیاں مل جاتی ہیں. پھر یوز گاڑی لینے میں دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گاڑی کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس کی ہیلتھ کیا ہے, ٹائر کیسے ہیں, باڈی, انجن, بیکاز ہر بندہ کار ایکسپرٹ نہیں ہوتا. تو میلے میں آپ کو پاک وہیلز انسپیکشن کا اسٹال مل جائے گا, وہاں پہ آپ گاڑی انسپیکٹ کرا سکتے ہیں. شرکاء نے پاک وہیلز کار میلے کی خوب تعریف کی. لوگوں نے اس طرح کی سرگرمیوں کو معلوماتی اور دلچسپ قرار دیا. کیمرہ مین حیدر علی کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. ریگل چوک پر ہر اتوار کو پرانی کتابوں کا منفرد بازار سجتا ہے, جہاں نادر اور نایاب کتابیں بھی موجود ہوتی ہیں. شہری کہتے ہیں کہ مارکیٹ سے انتہائی کم قیمت پر کتابیں مل جاتی ہیں. تفصیلات میر کیریو کی رپورٹ میں. ہیرے کی پرکھ جوہری جانے. جدید ٹیکنالوجی آنے کے بعد اگرچہ کتب بینی کا شوق کم ہو گیا ہے, لیکن شہر قائد میں کتب دوستوں کی بڑی تعداد موجود ہے. کتابوں سے محبت رکھنے والے جہاں ان کی موجودگی کی خبر پاتے ہیں, کھنچے چلے آتے ہیں. کراچی کی مرکزی شارع ریگل چوک پر ایسا منفرد بازار ہر اتوار کی صبح لگتا ہے, جہاں علم کے خزانے بند دکانوں کے فٹ پاتھ پر بکھرے دکھتے ہیں. شہری کہتے ہیں مارکیٹ سے یہاں انتہائی کم قیمت پر کتابیں مل جاتی ہیں. ہر اتوار کو یہاں مختلف موضوعات پر کتابیں خریدتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے موضوع کی کتابیں موجود ہیں. یہاں پہ آپ مذہبی کتابیں لے سکتے ہیں. لانگ ٹائم سے ایک عرصہ دراز سے کراچی کے اس مارکیٹ کو میں تقریباً 4 سے 5 سال سے وزٹ کر رہا ہوں ایوری سنڈے. بہت ساری بکس یہاں پہ اویلیبل ہیں جو کہ ایزیلی آپ کو مارکیٹ کے کم ریٹ سے, اور وہاں جو آپ کو کتاب کہیں پہ بھی نہیں مل سکتی وہ یہاں ایزیلی آپ ایکسیس ہے, آپ کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. دکاندار کہتے ہیں والدین کو چاہیے بچوں کو کتابوں کی طرف متوجہ کرائیں. میری ریکویسٹ ہے, درخواست ہے والدین سے کہ اپنے بچوں کو کتاب کی طرف لائیے. آپ کتاب جو دیں گے تو وہی اس میں پڑھے گا, اور نیٹ آپ اس کے اوپر نہیں دیکھ سکتے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے, گمراہی کی طرف جا رہا ہے آیا سیدھا لین کی طرف جا رہا ہے. 4 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے لگنے والے کتاب بازار میں ادب, سماجیات, قانون, سیاست, مذہب سمیت دیگر موضوعات پر نادر کتابیں انتہائی کم قیمت پر دستیاب ہیں. کیمرامین گلفام شیخ کے ساتھ میر کیریو, سٹی 21. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا